الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پیار و محبت کے ساتھ، شوق و ذوق کے ساتھ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود السلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ جس طرح میں پڑھوں میرے پیچھے پڑھیے گا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کلام مجید کی آیت مبارکہ کی تلاوت کی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ایمان والو، راعنا نہ کہو، یوں کہو، عرض کرو کہ ہم پر نظر رکھیں اور پہلے ہی سے بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ جو لفظ ارشاد فرمایا، یہ آقا علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ آقا علیہ السلام کی باتوں کو سنتے تھے، اور سننے کے بعد یہودی بھی اور صحابہ بھی دونوں جو ہے کسی بات کو سمجھنے میں جب دشواری پیدا ہوتی تو وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے راعنا، کہ ہم پر جو ہے آپ جو ہے توجہ فرمائیں کہ ہم نے یہ کلام صحیح طرح سنا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ آیت مبارکہ نازل کی، اور نازل کرنے کا مقصد یہ تھا، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ حضور کی مجلس کے اندر یہودی بھی بیٹھتے تھے، منافق بھی بیٹھتے تھے، اور صحابہ کرام بھی بیٹھتے تھے، ایمان والے بھی بیٹھتے تھے۔ لیکن جب ایمان والے یہ لفظ کہتے تھے راعنا، تو ان کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ حضور ہم پر جو ہے توجہ فرمائیں تاکہ ہم آپ کے کلام کو بغور صحیح طرح سمجھ لیں۔ لیکن جب یہودی یہ لفظ کہتے تھے تو وہ معنی بگاڑنے کی نیت کرتے تھے۔ راعنا کا مطلب یہودیوں کی زبان میں جو ہے وہ برا سمجھا جاتا تھا، حالانکہ اس کے دو معنی نکلتے تھے، ایک معنی اچھا تھا اور ایک معنی برا تھا۔ لیکن جب یہودی اس معنی کو لیتے تھے، راعنا کا لفظ کہتے تھے، تو وہ اپنی زبانوں کو موڑ کر لفظ استعمال کرتے تھے۔ تو حضرت جو معاذ تھے وہ ان کی زبان سے، حضرت سعد بن معاذ جو ہے وہ ان کی زبان سے واقف تھے۔ تو ایک مرتبہ جب یہودیوں نے حضور کی بارگاہ میں راعنا کا لفظ کہا تو آپ کو جلال آ گیا، اور اتنا جلال آیا کہ آپ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں خبردار، اگر آج کے بعد تم نے حضور کی بارگاہ میں راعنا کا لفظ استعمال کیا تو میں تمہارے گردن کو جو ہے تمہارے تن سے جدا کر دوں گا۔ تو یہودیوں نے کہا یہ لفظ صرف ہم تو استعمال نہیں کرتے بلکہ صحابہ کرام بھی تو استعمال کرتے ہیں نا، تم ان کو کیوں نہیں کہتے؟ حالانکہ سعد بن معاذ جانتے تھے کہ صحابہ کرام جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ محبت کی بنا پر کرتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ حضور کی واقعی توجہ ان کی طرف آ جائے تاکہ وہ اپنے کلام کو سمجھ لیں۔ لیکن یہودیوں کا یہ لفظ استعمال کرنا اس لیے تھا کہ حضور کی بے ادبی کر دی جائے، حضور کی گستاخی کی جائے، اور بعد میں ہم مذاق اڑائے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ تو پھر حضرت سعد جو ہے حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ جو یہودی ہے نا، یہ جو راعنا کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہ اس سے برا معنی لیتے ہیں۔ تو جیسے ہی حضرت سعد نے یہ کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو نازل کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، کہ اے ایمان والو، آج کے بعد حضور کو راعنا نہیں کہنا ہے بلکہ کہنا ہے انظرنا کہنا ہے، کہ حضور ہم پر نظر کرم فرمائے
اور اللہ نے یہ انظرنا کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ یہودی اگر ٹل بھی لگا لیں تو اس کے معنی کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کو بگاڑ نہیں سکتے ہیں۔ رائنا کو بگاڑنے کے بعد وہ اپنے ذہن میں یہ تصور کرتے تھے کہ حضور کی گستاخی کر رہے ہیں، لیکن انظرنا کا لفظ استعمال کر دیا گیا تاکہ گستاخی کا پہلو ہی ختم ہو جائے اور قربان جائے میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر بھی یہودیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، کہا یہودیوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کلمات کو ان کی جگہ سے پھیر دیتے ہیں، یعنی بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور مانا نہیں، اور آپ سنیں آپ کو نہ سنایا جائے، اور رائنا کہتے ہیں زبانیں موڑ کر کہتے ہیں اور دین میں تانا کرتے ہیں، اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا، حضور ہماری بات سنیں اور ہم پر نظر فرمائے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اگر وہ اس نیت سے کہتے کہ حضور ہماری بات سنیں اور ہم پر نظر فرمائے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، لیکن ان کی نیت یہ نہیں تھی، ان کی نیت حضور کی گستاخی کرنا تھی۔ اب قرآن نے جب یہ کہا کہ اگر وہ یہ کہتے کہ حضور ہماری طرف توجہ فرمائے اور یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، یہودیوں کے لیے کیا بہتر ہوتا؟ ارے میرے آقا جب کسی پر نظر کرم کر دیتے ہیں، جب کسی پر توجہ کر دیتے ہیں تو ایک بے جان چیز کے اندر میرے حضور جان کو ڈال دیتے ہیں، تو یہودی اگر اس نیت کے ساتھ عرض کرتے کہ حضور ہم پر بھی توجہ فرمائے تو کیا حضور ان کے دل کو تبدیل نہیں کرتے؟ حضور ان کے دل کو تبدیل کر دیتے، لیکن ان کی خود کی نیت یہ تھی کہ ہمارے دلوں کو تبدیل نہ کیا جائے۔ ان کی خود کی نیت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کی تھی، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پہلو ہی ختم کر دیا، وہ لفظ ہی ختم کر دیا، اور پھر قیامت تک کے لیے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کو نازل کر کے ایک اصول نافذ کر دیا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں چھوٹے لفظوں کو استعمال نہ کرنا، میرے محبوب کی بارگاہ میں دو معنی لفظوں کو استعمال نہ کرنا، میرے محبوب کی بارگاہ میں ایسے لفظوں کو استعمال نہ کرنا کہ جن کو تم اپنے روزمرہ زندگی کے اندر استعمال کرتے ہو، بلکہ میرے محبوب کی بارگاہ میں اگر لفظ استعمال کیے جائے تو یا رسول اللہ کہنا، یا امام القبلتین کہنا، بلکہ یہ کہنا انظرنا، حضور ہم پر نظر کرم فرمائے، قربان جائیں۔ ایک شاعر نے بڑی ہی خوب بات کہی، فارسی کے اندر وہ شعر ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، کہا کہ اگر ہم 1 کروڑ مشک اور غلاب کے ساتھ بھی اپنا منہ دھو لیں اور کلی کر لیں، اور کلی کرنے کے بعد محبوب خدا کا نام لینا چاہیں تو ہماری اتنی اوقات نہیں کہ اس کا نام لے سکے، بلکہ ہم یہ بھی بے تصور کرتے ہیں کہ حضور کا ڈائریکٹ نام بھی لیا جائے۔ اللہ اکبر، یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ کے اندر حضرت جنید بغدادی بھی سانس روک کر حاضر ہوا کرتے تھے، یہ وہ بارگاہ ہے جس کے اندر بایزید بستانی بھی سانس روک کر داخل ہوا کرتے تھے، یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس کے سامنے جانے سے پیر نصیر الدین شرماتے تھے اور وہ کہتے تھے یہ بھی کیا کم ہے کہ ان کے شہر میں آئے ہوئے ہیں، کہا کہ شرم و حیا سے ان کے سامنے آیا نہیں جاتا، یہ بھی کیا کم ہے کہ انہوں نے اپنے شہر کے اندر بلا لیا ہے۔ تو بزرگان دین کا طریقہ تو یہ تھا کہ حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے تو اپنے سانس کو بھی روک لیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا کہ جب حضور کلام کیا کرتے تھے اور کلام کرنے کے دوران صحابہ کرام اس طرح بیٹھتے تھے کہ پرندے ان پہ آ کر بیٹھ جاتے، وہ پرندہ جو ہے اڑتا نہیں تھا، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر کہیں پرندہ دیوار پر بیٹھا ہو اور آپ اگر اس کے پاس تھوڑا سا جائیں تو وہ ڈر کر اڑ جاتا ہے، کیونکہ اسے محسوس ہو جاتا ہے کہ کوئی مجھے پکڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو آپ ذرا اندازہ تو لگائیں کہ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں کس طرح ساکن ہو کر بیٹھتے تھے کہ پرندے ان کی گردنوں پر آ کر بیٹھ جاتے، ان کے سروں پر آ کر بیٹھ جاتے، اور کوئی پرندہ اڑتا نہیں تھا بلکہ بیٹھا ہی رہتا تھا۔ تو حضور کی بات وہ کتنی توجہ سے سنتے تھے، حضور کی بارگاہ کی وہ کتنی تعظیم کیا کرتے تھے۔ لیکن آج کا دور ایسا بھی ہے کہ اگر حضور کی بات چل رہی ہو تو لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، آج کا دور ایسا بھی ہے اگر کلام مجید پڑھا جا رہا ہو تو لوگوں کی ٹھاٹیں مارتی بھی ہنسی نکل رہی ہوتی ہے، آج کا دور ایسا بھی ہے کہ اگر حضور کی بات کی جائے
तो वो अपनी बात को सामने लेकर आ जाता है कि मैंने तो ये सुना था, अच्छा हुजूर ने ये फरमाया, लेकिन मैंने तो ये सुना था। सुनो सुनो, मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है और मुस्लिम शरीफ के अंदर हज़रत इमरान बिन हसीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस को रिवायत करते हैं और वो कहते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हया खैर है, यानी हया जो है वो बेहतरी ही लेके आती है। किसी के अंदर हया पैदा हो जाए तो उसके अंदर बेहतरी ही आती है। तो हज़रत बशीर बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, हिकमत की किताबों में लिखा है हया ही से वकार है, हया ही से सकीना है। तो हज़रत इमरान बिन हसीन गुस्से में आ गए, जलाल में आ गए, कहा कि मैं तुझे हुजूर की बात सुना रहा हूं, तू हिकमत की बातें सामने लेकर आ रहा है, मैं तुझे प्यारे नबी का फरमान सुना रहा हूं, तू दूसरों की किताबें मेरे सामने लेके आ रहा है। कहा कि हुजूर की बात के बाद हर किसी की बात खत्म है। कहा कि हुजूर का कलाम जो है सबसे अव्वल है, हुजूर की बात सबसे अव्वल है, हुजूर का कलाम, इसके आगे किसी और की बात नहीं चलेगी। लेकिन आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, अगर हम हुजूर का कलाम सुना दे, हुजूर की बात सुना दे, तो हम ये कहते हैं हमारा ज़हन ये कहता है ये मसला यूं नहीं यूं होना चाहिए, हजरत मेरी तहकीक के मुताबिक मसला यूं होना चाहिए, हजरत मेरा दिल इस पर मुतमईन नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे थोड़ा जरा गौर तो कर, वो बारगाह जिस बारगाह में सहाबा अपने सर को नहीं उठाया करते थे, वो बारगाह जिस बारगाह में सहाबा अपनी जबान से जो है ऐसा लफ्ज निकाला नहीं करते थे कि कहीं बेदबी ना हो जाए, तो आज हुजूर की हदीस सुनकर कहता है कि मेरा ज़हन ये कहता है। आज तूने कितनी किताबें पढ़ी हैं जरा बताओ तो, आज एक किताब भी हम मुकम्मल नहीं पढ़ पाते। आज अगर आज का मुसलमान जो दीन के अंदर तहकीक कर रहा है, अगर उससे पूछा जाए कि बताओ कि कलाम मजीद को तर्जमे के साथ पढ़ा है या नहीं पढ़ा, तो वो कहेगा नहीं मैंने तर्जमे के साथ नहीं पढ़ा। लेकिन हजरत अगर आपने तर्जमे के साथ कलाम मजीद को नहीं पढ़ा तो फिर आप ये तहकीक कहां से बयान कर रहे हैं? और आप जो ये कह रहे हैं कि मेरा ज़हन ये कहता है कि इस बात का मतलब ये है, इसलिए क्योंकि दीन को हमने हल्का जान लिया है। यही बंदा अगर डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर अगर उसे कहे कि फुला इंजेक्शन लेके आओ और वो इंजेक्शन लगाएंगे तो तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी, तो ये कभी भी अपनी जबान से ये लफ्ज नहीं निकालेगा कि हजरत ये इंजेक्शन ना लगाया जाए, बल्कि मेरी तहकीक कहती है फुला इंजेक्शन लगाया जाए। वहां पर कभी जबान को नहीं खोलेगा, वहां पर कभी ये नहीं कहेगा कि हजरत ये दवाई ना लिख के दे, बल्कि मेरा ज़हन ये कहता है कि फुला दवाई मुझे लिख दी जाए, उससे मैं जल्दी सेहतयाब हो जाऊंगा। अगर कोई ड्रिप लगाने के लिए कहते तो वो ये कभी नहीं कहेगा कि हजरत ड्रिप ना लगाएं, बल्कि मेरी तहकीक कहती है कि मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगा। वहां पर आपकी जबान बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने डॉक्टरी के शोबे को अफजल जाना है, अजमत वाला जाना है, बुलंद जाना है, तो आप उसके मुकाबले में खड़े नहीं होते। अरे सोच और अपने गिरबान में झांक कि तूने दीन को इतना हल्का जान लिया कि हुजूर की बात आती है तो तू कहता है मेरी तहकीक ये कहती है, और हुजूर का कलाम आता है तो तू कहता है कि मेरा कलाम ये कहता है और मैं ये समझता हूं कि ये ठीक है। खुदा की कसम, हुजूर ने फरमाया ना, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया कि लोगों मेरी आवाज से बुलंद किसी की आवाज नहीं होनी चाहिए, मेरी बात से आगे किसी की बात नहीं होनी चाहिए। और फिर हज़रत इमरान बिन हसीन ने वाज़े तौर पर मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस मुबारक इमाम मुस्लिम भी लेकर आगे कहा कि हुजूर की बात के आगे कोई और बात नहीं की जाएगी। और फिर फरमाया गया आगे कि ऐसा कोई भी माना जो हुजूर के लिए तौहीन वाला हो तो उसे इस्तेमाल हरगिज नहीं किया जाएगा। जिस तरह मैंने जिक्र किया कि एक शायर ये कहता है कि अगर हम अपने मुंह को 1 करोड़ गुलाब के साथ भी धो लें और मुश्क की कुल्लियां कर लें, फिर भी हम हुजूर के नाम को लेने के काबिल नहीं है। लेकिन आज जिसका मुंह उठता है वो नात लिखता है और नात में ऐसे अल्फाज जिक्र करता है कि जिससे जो है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन की तरफ पहलू निकल रहा होता है। सुनो सुनो, इमाम आजम इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिखा कि किसी ने आकर आपसे पूछा कि नात लिखना आसान है या अल्लाह की हम्द करना आसान है, तो आपने कहा कि अल्लाह की हम्द करना आसान है, नात लिखना बड़ा मुश्किल है। कहा कि वो कैसे? कहा कि अल्लाह की हम्द में तुम जितना चाहे उसकी बुलंदी बयान कर दो वो कम ही होती है, जितनी बुलंदी बयान कर दो वो कम ही होती है। लेकिन नात के मामले के अंदर अगर ज्यादा बुलंदी बयान कर दी तब भी तुम दायरा इस्लाम से निकल जाओगे, और अगर कमी बयान कर दी तब भी तुम दायरा इस्लाम से निकल जाओगे। कहा कि नात लिखना एक 2 धारी तलवार के बराबर है कि अगर इधर बढ़ गए तब भी कट जाओगे, उधर चले गए तब भी कट जाओगे, बढ़ा दिया तब भी
ठीक दायरा इस्लाम से निकल जाओगे, और अगर घटा दिया तो गुस्ताखी की वजह से भी दायरा इस्लाम से निकल जाओगे। आप अल्लाह की जितनी मर्जी शान बयान करें, आप कभी भी दायरा इस्लाम से नहीं निकलेंगे। लेकिन अगर कोई शख्स, कोई नादान हुजूर को अल्लाह के मकाम पर पहुंचा दे तो वो दायरा इस्लाम से निकल जाएगा। इसी तरह अगर हुजूर की शान को घटा दे तब भी वो दायरा इस्लाम से निकल जाएगा। तभी हमारे बुजुर्गान दीन ने कहा कि हुजूर की बारगाह में कभी भी लफ्ज इस्तेमाल करना हो तो बड़े गौर और तहम्मुल के साथ लफ्ज को इस्तेमाल किया जाए। आज बाज लोग ऐसे भी हैं जो हुजूर को बड़ा भाई कह देते हैं, बाज लोग ऐसे भी हैं जो हुजूर को गांव का चौधरी कह देते हैं और कहते हैं कि हुजूर की इज्जत कितनी करनी चाहिए, जिस तरह गांव का चौधरी होता है ना, बस उतनी इज्जत करनी चाहिए, जिस तरह बड़े भाई की इज्जत की जाती है उतनी इज्जत करनी चाहिए। लेकिन कुर्बान जाए, हमारे बुजुर्गान दीन से भी किसी ने पूछा था कि बताओ कि हुजूर की इज्जत कितनी करनी चाहिए और हुजूर का मकाम क्या है, तो आपने कहा कि हुजूर का मकाम मुझसे पूछते हो, कहा कि हुजूर का मकाम यह है सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले चुक गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कहा आना कासिमुन की हदीस की तशरीह करते हुए कहा कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाह अकबर। ये हमारे बुजुर्गान दीन गुजरे हैं जिन्होंने हुजूर की सिर्फ ताजीम को बयान किया है और हुजूर की शान के अंदर ऐसे लफ्जों को इस्तेमाल किया है कि जिससे हुजूर की शान ही जाहिर होती है, हुजूर की शान ही जाहिर होती है, बेदबी का तसव्वुर भी नहीं आता। बल्कि हमारे बुजुर्गान दीन ने तो यहां तक लिखा कि इमाम अहमद बिन हंबल का एक वाकया आपको जिक्र करता हूं कि इमाम अहमद बिन हंबल के पास कोई शख्स आता और आकर कहता कि मैं आपसे मसला पूछने के लिए आया हूं। तो इमाम अहमद बिन हंबल अपने घर से, यानी जो गुलाम होता था, आपकी खिदमत में कोई शख्स होता था, उससे पूछते थे जाओ जाके पूछो इसने कौन सा मसला सुनना है। कहा कि अगर फिकी मसला सुनना है तो मैं भी फौरन बाहर आ जाता हूं और फिकी मसला बयान कर देता हूं, लेकिन अगर उसने फिकी मसला नहीं सुनना बल्कि अहादीसे मुबारका सुननी है तो मैं अभी फौरन बाहर नहीं आऊंगा। तो जब पूछा गया कि हजरत आप फौरन बाहर क्यों नहीं आते, कहा फिकी मसले के अंदर तो बस यही बताना है ना कि वुजू के 4 फर्ज हैं और पूरा चेहरा धोना, हाथों को समेत धोना, चौथाई सर का मसा करना, अपने पांवों को टखनों समेत धोना। कहा कि अगर मैं फिकी मसला बयान करूंगा तो इन अल्फाजों को इस्तेमाल करूंगा कि गुस्ल के 3 फर्ज होते हैं, तयम्मुम के भी 3 फर्ज होते हैं, नहीं नियत करना, पूरे मुंह का मसा करना, दोनों हाथों का कोनियों समेत मसा करना। कहा कि मेरी जबान से यही लफ्ज निकलेगा। कहा कि अगर वो पूछता है कि हदीस सुनाओ तो मैं अपनी जबान को तो पहले वुजू करके पाक कर लूं, मैं अपने महबूब का नाम अगर उसके सामने जाकर लूंगा तो बेवुजू नहीं ले सकता। कहा कि अगर कोई शरी मसला पूछने के लिए आता तो फौरन बाहर आते और मसला बताकर वापसी चले जाते, लेकिन कोई महबूब की बात पूछने के लिए आता, कोई हुजूर की हदीस पूछने के लिए आता तो आप फौरन बाहर ना आते बल्कि पहले वुजू करते, वुजू करने के बाद अपने मुंह को साफ करते और साफ करने के बाद अपने जिस्म पर खुशबू लगाते और खुशबू लगाने के बाद फिर बाहर आते और आकर कहते आओ तुम्हें मैं अपने महबूब की बात सुनाता हूं। अरे ये तो वो जिक्र है कि जिसको बुजुर्गाने दीन अगर जिक्र भी किया करते थे तो खुशबू लगाकर जिक्र किया करते थे, आपका कलाम भी लिया करते थे तो वुजू के साथ कलाम लिया करते थे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज का नौजवान हुजूर की बातें अगर सुनने के लिए आ भी जाए तो तरह तरह के ज़हन के अंदर वसवसे आ जाते हैं। ये वसवसे क्यों आते हैं? ये मोहब्बत की कमजोरी की वजह से आते हैं। आओ मैं तुम्हें एक वाकया अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सुनाऊं कि जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज से वापसी आए और मेराज से वापसी आने के बाद हुजूर ने लोगों से कहा कि मैं एक ही रात के अंदर यहां से मस्जिद अक्सा तक गया, फिर मस्जिद अक्सा से लेकर मेराज के ऊपर गया, पहला आसमान देखा, दूसरा आसमान देखा, तीसरा आसमान देखा, 7वां आसमान तक गया और फिर इस तरह सिदरतुल मुंतहा तक पहुंच गया और फिर लामका पहुंचा, जिस जगह का कोई नाम नहीं, वो जगह ही नहीं है, वो लामका है और अपने रब का मैंने इन आंखों से दीदार किया। तो लोगों ने एतराज कर दिया, कहा ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है, कोई एक रात में इतनी दूर चला जाए। लेकिन अबू बकर सिद्दीक वहां मौजूद नहीं थे। अब मैं आपसे बात वो करने लगा हूं, ये मोहब्बत की कमी है जो वसवसे आ जाते हैं कि यार ये कलाम ठीक है भी या नहीं, ये मसला ठीक है भी नहीं,
यह हदीस ठीक है भी है नहीं। तो अबू बकर सिद्दीक के पास एक शख्स आया, कहा कि बताओ कोई शख्स, अब देखे लफ्ज का इस्तेमाल क्या किया, कहा अगर कोई शख्स ये कह ले कि मैं एक रात यहां से मदीना से मस्जिद अक्सा तक गया, क्या वो जा सकता है? तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि सफर बहुत लंबा है। कहा कि अगर कोई शख्स के मस्जिद अक्सा से मैं आसमानों की तरफ गया हूं, कहा कि नहीं, कोई नहीं जा सकता है। जो शख्स ये कहता है वो झूठ बोलता है। तो कहा कि जाओ अपने नबी के पास जाओ, वो मस्जिद नबी के अंदर बैठकर लोगों से ये कह रहे हैं कि मैं एक रात के अंदर मस्जिद अक्सा गया और फिर मस्जिद अक्सा के बाद सातों आसमानों पर गया और अपने रब का दीदार किया। तो कहा कि बकबक खामोश हो जा, तूने पूछा कोई शख्स ये कह रहा है, अगर तू मुझे पहले बताता मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं तो मैं आंखें बंद करके यकीन कर लेता, क्योंकि मेरे महबूब कभी झूठ नहीं बोलते, मेरे महबूब की जबान पर कभी झूठ नहीं आता। तो वो भी तो लोग थे कि अगर कोई बात सुनते थे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में तो आंखें बंद करके यकीन कर लेते थे। तो बात जो चल रही थी वो यही चल रही थी कि हुजूर की बारगाह में अगर अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए तो उन अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए तो हुजूर की शायाने शान हो, तभी अहले सुन्नत व जमात या रसूल अल्लाह कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल कहते हैं, या इमाम अल किबलतैन कहते हैं कि ए दो किबलों के इमाम कहते हैं, उन्जुरना कहते हैं, हम पर तवज्जो फरमाए। आप कभी भी अहले सुन्नत व जमात के अंदर कभी भी हुजूर को नाम लेता हुआ इस तरह नहीं पाएंगे कि बेअदबी का पहलू जाहिर हो रहा हो, बल्कि अगर वो हुजूर का नाम लेंगे भी तो वह साथ में लाजमी कहेंगे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो दुरूद पाक पढ़ेंगे। और आज के बयान की नसीहत ये है कि लोगों याद रखिएगा, चोर चोरी करने के लिए आता है ना तो उसके माथे पर लिखा नहीं होता कि मैं चोर हूं, बल्कि वो चोरी छुप कर करता है। तो ईमान की कोई चोरी करने के लिए आएगा, आपके अकीदे की कोई चोरी करने के लिए आएगा, वो बता कर नहीं आएगा कि मैं तुम्हारे अकीदे को चोरी करने के लिए आया हूं, तुम्हारे अकीदे को खराब करने के लिए आया हूं, बल्कि एक नुस्खा याद रख ले, एक पैमाना याद रख ले, जिसकी जबान से महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम सुने और फिर वो दुरूद पाक पढ़े और हुजूर की हर दफा शान ही बयान करे, तो बस समझ जाना ये बंदा कोई भी है ये हुजूर का चाहने वाला और कोई हुजूर का नाम ले। आज देखे कादियानी भी तो हुजूर का नाम लेते हैं लेकिन दायरा इस्लाम से खारिज हैं। क्यों खारिज हैं? कि वो हुजूर को मानते हैं, वो कलमा भी पढ़ते हैं, लेकिन वो आखिर में क्या कहते हैं कि हुजूर आखिरी नबी नहीं है, बल्कि हमारा जो अहमद है, गुलाम अहमद कादियानी जो है वो आखिरी नबी है और वो दायरा इस्लाम से खारिज हैं। अब हुजूर का नाम वो भी ले रहे हैं। तो आपको एक पैमाना दे दिया गया कि अगर कोई अदब से हुजूर का नाम लेता है तो समझ जाओ कि ये ईमान वाला है, और अगर उसकी बातों से हुजूर का नाम लेने से बेदबी का पहलू हल्का सा भी आपका जमीर गवाही देता है, आप बताएं अगर आपके बाप को मैं कहूं गंजा तो आप कहेंगे ना यार ये मेरे बाप का नाफरमान है। क्यों नाफरमान है? आप कहेंगे कि यार इसकी जबान से बेदबी का पहलू झलक रहा है। तो बताएं जो हमारे आका हैं, जो दोनों कायनात के मालिक हैं, कोई उनको कह दे कि ये तो बड़े भाई जैसा है, ये तो चौधरी जैसा है, इसकी इज्जत आम लोगों की तरह करनी चाहिए, तो आप उसकी महफिल में कैसे बैठे हुए हैं? जो आपके नबी का वफादार नहीं है तो वो आपका वफादार कैसे हो सकता है? फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया उन लोगों के लिए जो दुनिया में रहकर भी हुजूर की गुस्ताखी करते हैं, वलिल काफिरीन अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार किया हुआ है। और ऐसा अजाब है कि जिसे कोई आंख देख नहीं सकती, जिसे कोई जिस्म झेल नहीं सकता, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की पनाह और हुजूर की मोहब्बत ही इंसान को उस अजाब से बचा सकती है। अल्लाह तबारक व तआला मेरा कहना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन।